Hello everyone, myself इशिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली स्कॉलर। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी PYQ बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 100% श्योरिटी नहीं होती कि पेपर क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, बट येस मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और please do share this video with your friends and do subscribe our YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University as well, for all BCom program or BCom student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। बी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट। सी, ए lends his shop for gambling purpose to B, B does not pay rent, can A sue B to recover his rent, give reason। और दे रखा है और पार्ट में भी दे रखा है। ए, डिफाइन ऑफर, वट आर द वेरियस टूल फॉर मेकिंग अ वैलिड ऑफर। B, do you agree that contracts without consideration are void ab initio? Comment. C, who is competent to a contract? A, makes a contract with B, who is an alien enemy. Is this a valid contract? Comment. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 3 पार्ट्स ऊपर दे रखे हैं और 3 पार्ट्स नीचे और में दे रखे हैं। कुछ स्टूडेंट 6 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उन्हें लगता है कि टीचर हमें 6 के 6 मार्क्स दे देगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी 3 के ही पार्ट्स के आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उन्हें ए पार्ट भी आता है, बी पार्ट भी आता है, बट सी पार्ट नहीं आता। अब वो क्या करेंगे, और का सी पार्ट सॉल्व कर देंगे। उन्हें लगता है टीचर मार्क्स दे देगा, बट नहीं, आपको या तो कोई 3 ऊपर सॉल्व करना है या 3 ये नीचे वाले सॉल्व करने हैं। अलग अलग सॉल्व नहीं करने, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मेन थिंग, अगर आपको इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर पता हो तो आप पहले जाके, जो मैंने इस चैप्टर की पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए प्लीज़, उन्हें रेफ़र करिए। आप सबके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इनके इजीली आंसर्स दे पाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। बी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। C, A offers to sell his red car for rupees 1 lakh to B. B thought that A is selling his blue car for rupees 1 lakh and gave his acceptance. Is it a contract? Comment. Or part, explain the remedies available to an aggrieved party in case of a breach of a contract. B, discuss different type of mistakes and their effects. C, difference between coercion and undue influence. Question number 3. A, define contracts of guarantee. Differentiate between a contract of indemnity and a contract of guarantee. B, explain different modes of termination of agency. C, A lends a horse to B which A knew to be a vicious horse. A did not disclose that fact to B. The horse injured B. Is A liable to indemnify B for damages? Comment. Or A, who is a finder of goods, what are his rights and obligation? Explain. B, define contract of bailment. Differentiate between a contract of bailment and a contract of pledge. C, a delegate cannot delegate further. Comment. Question number 4. What are the difference between sale and agreement to sell? B, explain doctrine of caveat emptor. What are its exception? C, explain the meaning and modes of delivery under Sales of Goods Act 1930. Or A, what do you mean by a contract of a sale? What are the essential of a valid contract of sale? Explain. B, who is an unpaid seller? Elaborate the rights of an unpaid seller against good. C, explain the rules regarding transfer of property in case of specific or ascertained goods. Question number 5th. A, how can you convert a partnership firm into LLP? B, define LLP under LLP Act 2008. Explain its features. C, what do you mean by designated partner? What are their qualification? Or differentiate among a LLP, a partnership firm, and a company. B, who can become a partner in an LLP? How can you a partner ceases to be a partner from any LLP? C, write a short note on a small LLP. तो कुछ 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, और मोस्टली में और दे रखा होता है तो ईजी होता है, क्योंकि अब
किसी ना किसी को अगर ऊपर वाले नहीं पता होंगे तो नीचे वाले तो पता ही होंगे, ठीक है। और प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारे इन सब के आंसर्स पता हो और आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकें। और अभी हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, आप सबको उसके रिप्लाई दे दी जाएंगे। और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली स्कॉलर।